اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج بریانی نہیں پکی کیا؟ کھانے کی میز پر دھرے لوازمات دیکھ کر ربیہ نے بڑی بھابھی کی طرف استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ باقی سب بھی کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ روکے ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ بڑی بھابھی گڑبڑا گئی، نہیں اصل میں کپڑے دھوتے کافی دیر ہو گئی آج، اور آنیا آئمہ بھی صبح سے مٹر قیمہ کھانے کی فرمائش کر رہی تھی تو میں نے مٹر قیمہ پکا لیا، بریانی کل پکا لوں گی۔ ان کا انداز قدرے وضاحتی سا تھا۔ ربیہ کے چہرے پر تناؤ سا آ گیا۔ خوب بھابھی، اپنی بیٹیوں کی فرمائش تو آپ کو یاد رہی، لیکن میری پسند ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان دونوں نے تو آج قیمہ مٹر کی فرمائش کی، جبکہ میں کل رات ہی آپ کو بریانی پکانے کا کہہ چکی تھی۔ لقمہ توڑتے بڑے بھیا کا ہاتھ رک گیا تھا۔ خشمگین نگاہوں سے بیوی کو دیکھا۔ جب ربیہ بریانی پکانے کا کہہ چکی تھی تو پکائی کیوں نہیں؟ الفاظ سے کڑا لہجہ تھا۔ بڑی بھابھی نے تھوک نگلا، وہ میں نے سوچا یہ سوچنے سمجھنے کا کام تو تم رہنے ہی دیا کرو، جو کہا جائے بس وہ کیا کرو۔ انہوں نے بات پوری ہونے سے پہلے بیوی کو بری طرح جھڑک دیا تھا۔ بڑی بھابھی سب کے سامنے بہت سبکی محسوس کر رہی تھی، شوہر کے آتش فشاں مزاج سے اچھی طرح واقف تھی، اور یہاں تو معاملہ بھی 4 بھائیوں کی اکلوتی لاڈلی بہن کی فرمائش کا تھا۔ آج دن میں بھی ڈھنگ سے کچھ نہیں کھایا، سوچا تھا رات کو پیٹ بھر کر بریانی ہی کھاؤں گی، لیکن ربیہ رکت امیز لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اماں کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ بڑے بھیا نے ملامتی نگاہوں سے بیوی کو دیکھا جو خفت سے ہونٹ کاٹتی خود کو کوس رہی تھی۔ جہاں اتنا کچھ کر لیا وہاں بریانی بھی پکا لیتی۔ اگر بڑی بھابھی مصروف تھی تو تم پکا لیتی، بریانی پکانا کون سا مشکل کام ہے؟ لگے ہاتھوں کاشف نے بھی بیوی کی خبر لینی چاہی، وہ جذ بز ہو کر رہ گئی۔ ان دنوں وہ امید سے تھی اور بڑی بھابھی نے اس کی طبیعت کے پیش نظر از خود شام کا کھانا پکانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ بیٹا، دسترخوان پر بیٹھ کر بدمزگی نہیں کرتے، باقی جو اتنی ساری نعمتیں سامنے رکھی ہیں ان کی ناشکری مت کرو۔ دادی نے ماحول کا تناؤ محسوس کیا تو شفیق لہجے میں بولی، اگر میرا کھایا پیا کسی کو اچھا لگتا تو آج یہاں بریانی رکھی ہوئی ہوتی، آپ سبھی کھائیں یہ نعمتیں۔ ربیہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے کمرے کا دروازہ زوردار ٹھاک کے ساتھ بند کیا۔ سبھی جانتے تھے اب یہ دروازہ صبح ہی کھلے گا، سارے دن کی بھوکی میری بچی بیچاری بھوکے پیٹ ہی سو جائے گی۔ اماں کی بڑبڑاہٹ 4 بھائیوں کی پیشانی پر بل پڑے، بیویاں شرمندگی سے دو چار، آنیا آئمہ اپنی جگہ چور بنی بیٹھی تھی۔ ربیہ بنا کچھ کھائے اٹھ کر گئی تھی، سو سب نے ہی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ دادی نے تعصب سے سر ہلایا، اچھا خاصا ماحول خراب ہو گیا تھا۔ کیا یار، تم نے معمولی سی بریانی کے لیے گھر میں اتنا بڑا فساد کھڑا کر دیا؟ دس از ناٹ فیئر ربیہ۔ اس نے حسب عادت رات والا واقعہ صبح کالج میں اپنی بیسٹ فرینڈ صبا کے گوش گزار کیا تھا۔ کاٹن کے سفید شلوار قمیض میں ہلکے گلابی رنگ کے دوپٹے سینے پر پھیلائے دونوں ایک ساتھ ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ پوری بات سننے کے بعد صبا نے تعصب سے سر ہلا دیا تھا۔ بات بریانی کی نہیں، اہمیت کی ہے۔ انہوں نے میری پسند پر اپنی بیٹیوں کی فرمائش کو ترجیح دی اور یہ چیز میں برداشت نہیں کر سکتی۔ ربیہ کا انداز ایسا تھا جو کیا بالکل ٹھیک کیا، اسے اپنے رویے پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ ان کی بیٹیاں تمہاری بھتیجیاں ہوتی ہیں، صبا نے زور دیتے ہوئے گویا اسے یاد دہانی کروائی تھی۔ وٹ ایور، ربیہ نے سر جھٹکا، تمہاری بھابھی کے دل میں تمہارے خلاف میل آ گیا ہوگا، سب کے سامنے تمہاری وجہ سے ان کی اچھی خاصی انسلٹ ہوئی، تو غلطی بھی تو انہی کی تھی۔ صبا زچ ہو کر اٹھی، تو کیا لازمی ہے کہ ہر غلطی کرنے والے کو سب کے سامنے ذلیل کروایا جائے؟ تم کیوں اتنی سائیڈ لے رہی ہو ان کی؟ وہ میری بھابھی ہیں، تمہاری نہیں، حد ہو گئی۔ ربیہ الٹا اسی پر چڑھ دوڑی تھی۔ میں سائیڈ نہیں لے رہی، حق کی بات کر رہی ہوں۔ معمولی باتوں پر ایشو کھڑا کرنا کون سا درست عمل ہے؟ تھوڑی سی کمی بیشی بھی ہو جائے تو کمپرومائز کر لینا چاہیے۔ صبا کا سمجھاتا ہوا لہجہ رسانیت لیے ہوئے تھا۔ ربیہ نے طنزیہ سر جھٹکا، کمپرومائز وہ کرتے ہیں ڈیئر صبا جنہیں زندگی میں بہت محرومیاں ملی ہوں۔ میرے پاس بھلا کس چیز کی کمی ہے جو میں معمولی باتوں کے لیے اپنا دل مار کر کمپرومائز کرتی پھروں؟ تفاخرانہ لہجہ، زعم بھرا انداز۔ صبا نے سفیدے کے درخت سے ٹیک لگاتے ہوئے قدرے غور سے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا، بے نیازی اور خود اعتمادی جس کے ایک ایک انداز سے جھلکتی تھی۔
तुम्हें जिंदगी में सब कुछ मिला, इसलिए तुम्हें शुक्रगुजार रहना चाहिए, लेकिन जिंदगी हादसात का मजमुआ है। आने वाला कल गुजरे हुए कल से हमेशा मुख्तलिफ होता है। सबा उसे जो समझाना चाह रही थी, रबिया वो समझना नहीं चाहती थी। दोनों खामोशी से क्लास की जानिब चल दी। छोटी भाभी के यहाँ तीसरी बेटी की पैदाइश हुई थी। सारी रात जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद सुबह शादी के वक्त उन्होंने सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया था। कमरा इस वक्त अफराद खाना से भरा हुआ था। रबिया ने थोड़ा सा झुककर कंबल में लिपटी गुलाबी गुड़िया को देखा और बिना प्यार किए सीधी हो गई। इंसानी जिस्म का सबसे नर्म हिस्सा दिल अगर बेहिस हो जाए तो सबसे सख्त हिस्सा बन जाता है। फुप्पो, गुड़िया बहुत प्यारी है ना? तानिया और महक छोटी बहन की पैदाइश पर बहुत पुरजोश हो रही थी। आप एक बार फिर फुप्पो बन गई हैं। हाँ भाई, कौन सा पहली बार बनी हूँ, घर में वैसे ही भतीजियों का जुमा बाजार लगा हुआ है। भतीजे की फुप्पो बनती तो कोई बात भी थी। तानिया और महक चुप सी होकर उसका मुंह तकने लगी थी। छोटी भाभी ने बेसाख्त लब काटे, लेकिन बेटियां तो रहमत होती हैं फुप्पो। बड़ी भाभी की आनिया ने आहिस्तगी से कहा। वो बच्चों में सबसे बड़ी थी, समझदार और संजीदा। रबिया हंसी। रहमत अगर हद से ज्यादा हो जाए तो जहमत बन जाती है, जैसे बिन मांगी बारिश। दादी को पढ़ी लिखी पोती की नाआकबत अंदेशी पर अफसोस हुआ था। कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर बंद कर दिया कि बखूबी जानती थी दोनों माँ बेटी इनकी बातों को अक्सर रद्दी के मोल रोल देती थी। नाइमा भाभी के भाई की शादी की तारीख तय हो गई थी। वो आजकल बरी वगैरह की शॉपिंग के सिलसिले में बुरी तरह मसरूफ थी और अपनी बहनों के साथ बाजार निकल जाती। वापसी शाम ढले ढेर सारे शॉपिंग बैग्स के हमरा होती। उन्होंने बतौर खास अपनी और बच्चों की शॉपिंग की थी। इस वक्त लाउंज में शॉपिंग बैग्स खोले वो सबको अपनी शॉपिंग दिखा रही थी। ये मेहंदी पर पहनूंगी, ये माइयों पर, और ये वाला बारात के लिए ठीक रहेगा ना? बड़ी भाभी कपड़े खोलकर दिखाते हुए वो सबसे मशवरे भी ले रही थी। रबिया कुशन गोद में रखे चैनल सर्चिंग में मसरूफ थी, लेकिन जब उन्होंने वलीमा में पहनने के लिए गहरा सब सूट निकाला जिस पर सिल्वर नफीस सा काम था, रबिया बेसाख्ता निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गई। वाओ, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। प्यारा है ना? उन्होंने कदरे इश्तियाक से पूछा। हाँ बहुत, नाइमा भाभी मुस्कुराई थी। मुझे कब से ऐसे सूट की तलाश थी। मुस्कुराहट गायब हो गई। रबिया इस सूट पर स्ताइशी अंदाज में हाथ फेरती गोद में लिए बैठी थी। अगर इतना ही उस पर तुम्हारा दिल आ गया है तो तुम रख लो रबिया। चाय की चुस्कियां लेते रजा की फ्राक दलाना ऑफर पर नाइमा भाभी का दिल थमने लगा था। क्या वाकई? रबिया ने कंधे उचकाए। हाँ भाई, खुद तो कह रहा है तुम्हें। नाइमा फिर और ले लेगी अपने लिए। तुम्हें तो वैसे भी बहुत कम कुछ पसंद आता है। अम्मा ने फौरन हाँ में हाँ मिलाई थी। बड़ी भाभी ने नाइमा का चेहरा देखा जो जब्त की न जाने कौन सी मंजिल से गिर रही थी। वो तंग दिल नहीं थी। आंखों के किनारों से टपकने को बेताब कतरे अंदर ही कहीं बहुत खामोशी से गिरे थे। किसी ने रस्मी तौर पर भी उससे पूछने की जरूरत महसूस नहीं की थी। बाज़ औक़ात बज़ाहिर मामूली बातें बहुत दिल दुखाती हैं। इन दिनों वो सालाना इम्तिहानात के बाद फारिग थी। रात गए कुतब बेनी करती, दिन चढ़े सोई रहती। किसी को उसके रोजो शब पर अगर एतराज था भी तो कहने की जुर्रत कोई नहीं रखता था कि वो माँ की लाडली भाइयों की दुलारी थी। अम्मा आजकल संजीदगी से उसके रिश्ते के बारे में सोच रही थी। इस सिलसिले में शकीला खाला के घर उनके आजकल बाकायदगी से चक्कर लग रहे थे और ये अम्मा और शकीला खाला की मुश्तरका काविशों का ही नतीजा था कि कुछ अरसा में एक मतमूल घराने से उसका रिश्ता आ गया। असजद इकलौता था, खूबरू, बरसरे रोजगार, 2 शादीशुदा बहनें इसी शहर में अपने अपने घर खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही थी। रियाज अहमद उम्र के इस हिस्से में था जहाँ सारे फराइज से सबको दोष होने के बाद फारिग उल बाली के एहसास से सरशार ज्यादातर वक्त दोस्तों के साथ बैठक में ही गुजारते। रह गई महनाज बेगम। तन्हाई और उकताहट का शिकार दिल में चांद सी बहू लाने की तमन्ना शिद्दत से जाग उठी थी। सादतमंद बेटे ने माँ की ख्वाहिश पर फर्मा बरदारी से सर झुका दिया था। थोड़े ही अरसे में उन्हें रबिया की सूरत अपना गौहरे मकसूद मिल गया। रबिया के लिए इतनी खूबियों का हामिल का रिश्ता पाकर अम्मा के पांव खुशी से जमीन पर नहीं टिक पा रहे थे। कुछ लोग हमेशा से ही किस्मत के बहुत धनी होते हैं। बड़ी भाभी का तबसरा। शुक्र खोरे को खुदा शुक्र दे ही देता है। छोटी भाभी की तवील ठंडी सांस। खस कम जहाँ पाक। नाइमा भाभी ने दोनों हाथ झाड़े थे। रबिया की नाजुक मिजाजी का ज्यादातर अताब वही बनती थी। अब उसका यूं झट मंगनी पट ब्याह वाला मामला देखकर उन्होंने खासा सुकून का सांस लिया था। डिको पेंट का बेश कीमत फर्नीचर, बेहतरीन कराकरी इलेक्ट्रॉनिक की छोटी बड़ी अशिया, जदीद तराश खराश के मलबूसात, ब्रांडेड जूते, कॉस्मेटिक्स, सब कुछ परफेक्ट। बड़े भैया लिस्ट पर निगाहें दौड़ा रहे थे। बज़ाहिर तो सब कुछ परफेक्ट है रबिया, लेकिन
तुम्हें अगर कोई कमी बेशी लगे तो मत बताना मुझे। फिर मुझे तो सब कुछ ही परफेक्ट चाहिए भैया, जरा सी भी कमी नहीं चलेगी। सोफे पर आलती पालती मारे, कुशन गोद में रखे, नाखून फाइल करती रबिया ने अंगूठे और उंगली को मिलाकर जरा सा इशारा करते हुए ठंग कर कहा। बड़े भैया हंसने लगे। तो और क्या, मेरी रबिया का जहेज ऐसा होना चाहिए कि लोग देखें तो देखते रह जाएं, किसी को ये कहने का मौका ना मिले 4 भाइयों की इकलौती बहन का जहेज बस यूं ही सा है। अम्मा की बात पर दादी टोके बिना ना रह सकी। चादर देकर ही पाँव फैलाने चाहिए बहू, खुदा हमारी बच्ची का नसीब अच्छा करे। ये मादी चीजें सच्ची खुशियों का जामिन नहीं है। गो के उनका लहजा नरम था, लेकिन अम्मा को बेहद बुरा लगा। सच्ची बात जितनी भी शीरी लहजे में की जाए कड़वी ही लगती है। अरे वाह दादी, आपको क्या पता ससुराल में इन्हीं चीजों की वजह से ही कितनी वैल्यू बढ़ती है। रबिया ने दादी के पुराने ख्यालात को नाक पर बैठी मक्खी की तरह उड़ा दिया। अपनी अपनी सोच की बात है। दादी गहरी सांस खींचकर चुप हो गई। इन्हीं पोती का यूं बड़ों की मौजूदगी में अपनी शादी और जहेज वगैरह के मामले में बोलना नागवार लगा था। अच्छा तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी शादी में किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ेंगे, चाहे किसी से उधारी क्यों न पकड़ना पड़े। आखिर को एक ही तो बहन हो हमारी। फवाद भैया की बात पर रबिया की गर्दन एहसास तफाखुर से कुछ और अकड़ गई थी। कुछ लोगों के लिए शादी बोर का लड्डू होती है, लेकिन रबिया के लिए फूलों की सेज साबित हुई थी। उसे साल में मान मकाम आराम सब कुछ मिला था। वो शक्म सेर थी, मिजाज की ताजगी अरूज पर क्यों करना पहुंचती। भाभी इधर बाएं तरफ दीवार के साथ 2 स्टेप बने हुए थे। जब कभी बोर हो तो इस पर चढ़कर हमसायों के घर झाती मार लेना, सच में सारी बोरियत दूर हो जाएगी। शादी से पहले मेरा और शमसा का ज्यादातर वक्त इन्हीं स्टेप पर चढ़कर दीवार पार हमसायों के साथ बातचीत करने में गुजर जाता था। अब भी मैं तो जब भी अम्मी के यहाँ आऊँ तो टाइम निकालकर लाजमी इधर चढ़ती हूँ। उसकी नंद फिजा चाय के कप में चीनी मिलाते हुए कह रही थी। सच मुफ्त की इंटरटेनमेंट है। शमसा हंसी थी, फिर अपना चाय का कप उठाकर दूसरा उसकी जानिब बढ़ाया। रबिया ने यूं ही सर हिलाया। दीवार पर कौन सा प्रिंस विलियम अपनी फैमिली के साथ रहता है जिसको देखने के लिए मैं इतनी मुशक्कत करूं। नफासत से चाय का कप थामे रबिया ने नखुवत से सर झटका था। और रियली असजद का रद्द अमल तवक्को के ऐन मुताबिक था। रबिया ने मुस्कुराते हुए शाने उचकाए। मतलब मैं बाप बनने जा रहा हूँ। असजद के पुरमुसरत बेयकीन से लहजे पर उसने मसनूई खफगी से अब्रो चढ़ाए थे। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं यार, तुमने अचानक इतनी बड़ी गुड न्यूज सुना दी। समझ नहीं आ रहा कैसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूं। असजद मोहब्बत पाश लहजे में बोल रहा था। वो दिन और उससे आगे तलू होने वाला हर दिन रबिया के लिए अपने दामन में बहुत कुछ लेकर आता। मोहब्बत, तवज्जो, मान। वो मगरूर सी इन नवाज़िशात को हक समझकर वसूल करती रही। छोटी भाभी फिर उम्मीद से थी। भाभी अल्ट्रासाउंड करवाया? इस बार भी बेटी तो नहीं? नेल पॉलिश पर फूंके मारती बज़ाहिर वो हमदर्दी से पूछ रही थी। कपड़े इस्त्री करते छोटी भाभी के हाथ लम्हा भर के लिए थमे। फिर आहिस्ती से कहा, जो खुदा को मंजूर। हाँ, जो खुदा को मंजूर। रबिया ने तंजिया हंकारा भरा था। इन दिनों असजद की ऑफिस में मसरूफियात बढ़ गई थी। मेहनाज बेगम की अपनी मसरूफियात थी। रबिया जूस पीकर रेस्ट करके और अपने लिए रखी गई कुल वक्ती मुलाजमा को हमा वक्त अपने सर पर सवार देखकर बुरी तरह उकता गई थी। बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा आराम भी थकावट का सबब बनता है। यूं ही बैठे बिठाए एक दिन न जाने उसे क्या सूझी। बाएं जानिब दीवार के साथ बने स्टेप पर चढ़कर दीवार पर दोनों हाथ जमाए। दूसरे ही लम्हे उसे अपना दिमाग चकराता हुआ महसूस हुआ। वो तो कोई और ही दुनिया थी। मोटे नकोश की हामिल सांवली औरतें, सितारों से झिलमिलाते रेशमी कपड़े, नकली जेवरात पहने दुबली पतली लड़कियां और निक्कर बनियान में मलबूस शोर मचाते कच्चे सहन में भागते दौड़ते बच्चे, हर उम्र और साइज के बच्चे, हर कोई मुतहर्रिक कामों में बातों में। रबिया पर नजर पड़ी। दुल्हन स्याह शलवार पर जामनी कमीज पहने, दुपट्टा देहाती स्टाइल में सर पर लपेटे, बर्तन मांजती औरत के लिए लबों से निकला था। सबकी निगाहों में हैरत अंगेज हसरत की जगह इश्तियाक उमड़ आया था। रबिया तेजी से नीचे उतरी। सामने का माहौल और मंजर देखकर उसे बेइख्तियार उबकाई आई थी। मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। उस दिन टाइल्स वाले वॉशरूम में उसका पाँव बुरी तरह फिसल गया था। वो अम्मा के घर एक पुरतकल्लुफ दिन गुजारकर असर के वक्त वापस लौटी थी। चूँकि डिलीवरी के दिन करीब थे तो अम्मा के घर चक्कर कई रोज बाद ही लगाती। उसे इस समय हफत अकलीम अपनी निगाहों के सामने घूमते महसूस हुए। दर्द इतना शदीद था कि नाकाबिले बयान। कई घंटे मौत और जिस्त की जंग लड़ते उसने मुर्दा बेटे को जन्म दिया था। मुमताज बेगम बेदम होकर सोफे पर गिर गई। असजद की आंखें शिद्दत गम से सुर्ख हो रही थी। मजीद रूह फरसा खबर, वो कभी माँ नहीं बन सकेगी। रबिया ने आंखें खोली तो अपनी खाली गोद को देखा। खाली कोह का एहसास वहशत बनकर पूछा गया। वो रोई, चीखी, तड़पी और गालियां दी और चुप साधी। ऐसी चुप
जिसमें मौत का सन्नाटा था। क्या यूं भी होता है? अजियत ही अजियत थी। वक्त थमता नहीं है, अपनी मखसूस रफ्तार चलता आगे बढ़ जाता है। बहुत कुछ अपने पीछे छोड़कर न जाने कितने अरसे के बाद वो अम्मा के घर जाने के लिए खुद को तैयार कर पाई थी। मौका ही ऐसा था, छोटी भाभी ने बेटे को जन्म दिया था। ये खबर सुनकर वो कई लम्हों तक यूं ही खाली जहन की कैफियत में चुप सी बैठी रही, फिर उठी। हल्के नीले रंग का काटन का कढ़ाई वाला सूट जेब तन किया, शिफॉन का हम रंग दुपट्टा सीने पर फैलाया, नेचुरल कलर की लिपस्टिक लगाकर बाल समेटते हुए चोटी बनाई। खुद को समझने का फन इंसान किसी और से नहीं सीखता, ये इसको खुद ही सीखना पड़ता है। घर में दाखिल होते ही उसे खुशगवार सी चहल पहल का एहसास हुआ। सब्ज ग्रिल वाले बरामदे की दाएं जानिब से किचन में आनिया घुन चक्कर बनी हुई थी। वो यूं ही कदम कदम चलती दरवाजे पर आ खड़ी हुई। आनिया आपी, मुझे कबाब चाहिए, तानिया लाड से फरमाइश कर रही थी। और मुझे फिंगर चिप्स। उचक कर स्टूल पर बैठती आयमा याद दहानी करवा रही थी। ओके बाबा। बालों को थोड़ा सा ऊपर करके कैचर में जगड़ते उसने आस्तीनें ऊपर चढ़ाई थी। चूल्हा जलाया, सॉस पैन रखा और फ्रिज से मतलूबा लवाजमात निकाल कर स्लेब पर रखती गई। मैं तो सिर्फ नूडल्स खाऊंगी। गोल मटोल सी महक घुंघरियाले बालों वाला सर हिलाती हुई तीसरी बार कह रही थी। आनिया आपी, मैं सिर्फ नूडल। ओके मैडम, सुन लिया। मसरूफ सी आनिया ने झटपट उसे प्यार किया था। रबिया मुस्कुराई, किचन के आध खुले दरवाजे पर खड़ी रही। उसने दुबली पतली आनिया को देखा। वो भी तो उसी घर की बेटी थी, जिसमें खुद एतमादी और खुददारी तो थी, लेकिन जाम और एहसास, बर्तरी और तफाकुर नापेद था। उसे बड़ी भाभी की तरबियत पर रश्क आया था। काश अम्मा, अगर आप भी मेरी नाजो नाम उठाते वक्त तवाज़न रखती तो आज मैं यूं इस तरह। उसकी पलकों पर लर्जिश उतरी थी। फुप्पो आगे किसी भतीजी की नजर उस पर पड़ी तो नारा बुलंद किया। बेख्तियार उसका दिल चाहा अपनी भतीजियों को बाहों में भर ले। उसकी आमद पर सबसे बेपनाह मुसरत का इजहार किया था। झुककर गुलाबी कंबल में लिपटे भतीजे को देखा और बहुत नरमी से अपने होंठ उसकी पेशानी पर रख दिए। आप एक अदद भतीजे की फुप्पो बन ही गई आखिर। आने ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा था। वो जिता नहीं रही थी, रबिया जानती थी। फुप्पो, भैया प्यारा है ना? गुड़िया बहुत इश्तियाक से पूछ रही थी। प्यारे तो तुम हो गुड़िया, भैया से भी ज्यादा। उसने गुड़िया को अपनी बाहों में भरकर जोर से भींच लिया था। उसे गुड़िया की पैदाइश पर अपने कहे अल्फाज याद आ गए। अगर वो हादसा ना हुआ होता तो आज तुम भी, छोटी भाभी ने दुख से बात अधूरी छोड़ दी। जो अल्लाह को मंजूर, रबिया ने आहिस्तगी से कहा। बाज़ औक़ात अपने ही के अल्फाज मुंह पर तमाचे की तरह आकर लगते हैं। आज भी वो अपने कदमों को किसी मामूल की तरह बाएं दीवार के साथ बने स्टैंप पर चढ़ने से रोक नहीं पाई थी। मंजर वही था, उसके देखने का अंदाज बदल गया था। बर्तन मांजती सुगरा कोई खुशगवार सा तस्करा छेड़े हुए थी। उसकी मदद के ख्याल से धुले हुए बर्तनों के टोकरे उठाकर बांध की चारपाई पर रखती। सफूरा हमतन गोश्त थी, दुबली पतली सदीका मोबाइल पर गाने लगाए, दुपट्टा कमर पर कसे, कच्चे सहन में पानी के छिड़काव के बाद झाड़ू लगा रही थी। करीबी चारपाई पर जुबैदा अपने 2 साला बेटे को नहलाकर उसकी गर्दन पर ढेर सारा खुशबूदार पाउडर डालने के बाद आंखों में सलाइयां भर भर सुरमा डाल रही थी। कुछ मंजर बहुत मुकम्मल होते हैं, मुकम्मल और भरपूर। वो बेख्तियार सोचती। गो के उसने काफी हद तक खुद को संभाल लिया था, फिर भी उसकी कमी अम्मा को खटकती। उनकी तसल्लियां दिलासे वो खामोशी से सुनती और बच्चा अडॉप्ट करने का मशवरा नरमी से रद्द कर देती। उसे ऐसी महरूमी के सहारे सारी जिंदगी गुजारनी थी ताकि ये कमी उसे एहसास दिलाती रहे कि हम बशर हैं और हमें अपनी औकात में ही रहना चाहिए।